بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ جناب، اس ملک میں کس طرح کی سیاست چل رہی ہے، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، عوام کہاں ہیں، سیاستدان کہاں ہیں، سیاستدانوں کی نظر میں عوام کی کیا اہمیت ہے، اس باتوں کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں نواز شریف پر۔ نواز شریف صاحب اپنے کیسز سے بری ہو گئے ہیں، ان کی سزائیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ کیسز سے کس طرح بری ہوئے، کس طرح سزائیں ختم ہوئیں، کیسز جھوٹے تھے تو پہلے سزائیں کیوں لگی تھی، اور وہ نیب نے کیسز واپس ہی کیوں لیے؟ اگر واپس لیے تو اس کا مطلب ہے ان کے جھوٹے کیس تھے، اور جھوٹے کیس تھے تو نیب کو کیوں نہ پکڑا جائے، اور اگر کیس سچے تھے تو انہوں نے واپس کیوں لیے؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اس ملک میں یہ تماشے چلتے رہتے ہیں، مگر ہم آتے ہیں نواز شریف کے کیسز کے ختم ہونے کے بعد اس کی سیاست پر۔ کیسز ختم ہونے سے پہلے تو وہ لندن سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں نے سب باتیں چھوڑ دی ہیں، اور سب باتیں اللہ پر چھوڑ دی ہیں، میں کسی کے خلاف انتقام نہیں لوں گا۔ مگر اب جب اس کے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اس کی جو ہے لینگویج ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ بول رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کن لوگوں نے کیا، ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ تو اب اس عمران خان میں اور نواز شریف میں کیا فرق ہوا؟ جس طرح عمران خان یو ٹرن لیتا ہے، نواز شریف بھی اس طرح یو ٹرن لیتا ہے۔ عمران خان کی طبیعت میں ذرا جلدی ہے، وہ ہلکا پن ہے، وہ ہر بات جلدی میں اور ہلکے پن سے کرتا ہے۔ اور یہ نواز شریف جو ہے وہ ایک سوچ سمجھ کر یہ اپنے داؤ استعمال کرتا ہے۔ تو بات تو وہی ہو گئی ہے کہ نواز شریف نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے جو ہم ہمیشہ کرتے آتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کی نظر میں عوام کی اور پاکستان کے عوام کی کیا پوزیشن ہے؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ جو بھی سیاستدان ہیں، چاہے عمران ہو، چاہے نواز شریف یا زرداری ہوں، وہ عوام کی بھلائی کے لیے اور عوام کی بھلائی کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ وہ تو صرف اقتدار کے اور کرسی کے جو ہے جھولے لینے کے لیے پینترے بدلتے رہتے ہیں۔ وہ عمران خان ہے، وہ اس کو فوج اقتدار میں لائی تھی، تو اب وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میری فوج کے ساتھ بن جائے اور میں دوبارہ اقتدار میں آ جاؤں۔ زرداری کبھی کوئی پینترا بدلتا ہے تو کبھی کوئی پینترا بدلتا ہے۔ کبھی بلوچستان میں جا کر وہ سرداروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی پنجاب میں جاتا ہے جہاں پی پی کو دیش نکالا دیا گیا ہے، تو پنجاب میں جا کر وہ کوشش کرتا ہے، مگر وہ کوششیں اس کی چلتی نہیں ہے۔ سندھ اس کو جہیز میں دیا گیا ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے نا، آپ ان سیاستدانوں کے یہ سیاست دیکھیں کہ پورے ملک میں ان کی سیاست چلتی نہیں ہے۔ نواز شریف اور زرداری یا پی پی نے ایک ایگریمنٹ کے طور پر پنجاب کو نواز کے حوالے کر دیا ہے، سندھ کو زرداری یا پی پی کے حوالے کر دیا ہے۔ اور جب وہ عمران خان بھی آیا تھا تو اس نے بھی سندھ کی طرف کوئی نہ الیکشن کے ٹائم میں توجہ دی تھی، نہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ جب وزیر اعظم بنا تو سندھ کی طرف توجہ دی تھی۔ تو یہ کس طرح کی سیاست ہے جو اس ملک میں چل رہی ہے، اور یہ سیاستدان کس طرح کے سیاستدان ہیں؟ یہ صرف کرسی کا کھیل رہے ہیں۔ اب نواز شریف اترنے کے بعد اب دیکھیں کہ وہ باتیں کیا کرتا ہے کہ میں نے ٹنل بنائے تو ووٹ مجھے کیوں نہیں دیے۔ جیسے اس نے ٹنل اپنے
जेब से बनाए थे या नून लीग के किसी फंड से बनाए थे। ये अजीब सियासत है पाकिस्तान में। सिंध में भी जरदारी या पीपल पार्टी जहाँ भी जाती है, हमने रोड बनाए हैं, हमने स्कूल बनाए हैं, हमने पुल बनाए हैं, हमने ये बनाए हैं, जैसे उन्होंने अपने बाप के खजाने से ये सब कुछ किए हैं और ये पैसे आवाम के नहीं हैं। तो नवाज शरीफ भी वही राग अलाप रहा है कि मैंने मोटरवे बनाए, मैंने ये लाहौर में जो है वो पुल बनाए, और वो मैंने एक टनल बनाया, तो लोग ने वोट मुझे क्यों नहीं दिया। अरे भाई, ये सब जो कुछ तुम लोग का तरक्याती काम करते हो आवाम के पैसों से होता है, कोई तुम अपने जेबों से नहीं करते हो। तुम अपना प्रोग्राम बताओ ना कि तुम आगे चलकर आवाम के लिए क्या करोगे। जरदारी के पास क्या प्रोग्राम है, नवाज के पास आवाम के लिए क्या प्रोग्राम है, इमरान खान के पास आवाम के लिए क्या प्रोग्राम है। इमरान खान का तो प्रोग्राम ही एक है कि जिस तरह मैं पहले फौज के कंधों पर आया था, अब भी फौज जो है मुझे माफ़ करके सारे गुनाह सारा केसेस ख़त्म करके मुझे फिर वो इक़्तिदार पर बिठाए। और वो नवाज शरीफ का तो बस वो उसकी सियासत का महवर ही पंजाब है। वो सिंध में छूटने के बाद सिंध में आया ही नहीं है। और वो जो है वो सब लोग ये अंदरूनी साजिशें करके और वो एमक्यूएम के साथ उधर बुला लिया है, सरदारों के पास उधर गया है ताकि वोट मिले। तो इन लोगों का आवाम पर भरोसा भरोसा नहीं है, मगर ये से जो सियासी चालें हैं और सियासी जो जोड़ तोड़ है, इसकी वजह से ये अपने इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो इन लोगों की इस सियासत को अवामी सियासत तो कहा ही नहीं जा सकता। तो ये लोग अच्छा, अब नवाज शरीफ ने केसेस से छूटने के बाद सिर्फ ये राग अलापने शुरू कर दिए हैं कि मैंने ये काम किए, मैंने ये काम किए। भाई, तुम लोगों ने जो करप्शन की, तुम लोगों के खिलाफ करप्शन के जो केस थे, नवाज दौर में जरदारी के खिलाफ कितने करप्शन के केस बने, और इसके नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान दौर में कितने। तो पहले तो तुम लोग अपनी करप्शन की सफाइयाँ तो दो कि तुम लोगों ने ये इतने माल और दौलत और इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर किस तरह बना लिए हैं। जरदारी की पूरी दुनिया में अलग वो जो है एम्पायर, ये एक दौलत की, और ये नवाज शरीफ की अलग पूरी दुनिया में एक दौलत की एम्पायर है। तो ये किस तरह आप लोगों ने बनाई है उस उन करप्शन की और उन बातों की, तो तुम लोग सफाई देते नहीं हो कि तुमने ये जो माल है किस तरह बनाया है। अगर करप्शन नहीं किए तो किस तरह बनाया है। उल्टा तुम आवाम के पैसों से जो काम कराते हो उसका एहसान आवाम पर करके और उनके बदले वोट मांगते हो। तो ये तो अजीब, एक मैं तो इसको बदमाशी ही कहूँगा कि ये किस किस्म की बदमाशी है जो पाकिस्तान में चल रही है कि अवामी पैसों से काम कराओ और फिर अवाम पर एहसान जताकर उनसे वोट मांगो। अच्छा, ये तो बताओ कि आपने जो जो मोटरवे बनाए हैं या जो जो बड़े बड़े मंसूबे बनाए हैं, इन मंसूबों पर आपके ऊपर जो है वो करप्शन के बड़े चार्जेस हैं, उसकी सफाई तो दो। उसकी सफाई क्यों नहीं देते, उसकी सफाई नहीं देते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा आवाम को डांटते हो कि मैंने ये काम कराए हैं तो मुझे वोट क्यों नहीं देते हो। सिंध में 15 सालों में जो पीपल पार्टी पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं, अल अमान बल लफीज, इधर तो इनके छोटे छोटे जो कारकुन भी करोड़पति बन गए हैं। जो पहले जिनके पास चप्पल भी और साइकिल भी नहीं होती थी, वो करोड़ों में घूमते हैं, पैजारों में घूमते हैं। तो ये तो सिंध में तो छोटे छोटे कारकुनों की यही हालत है। ऊपर वालों ने क्या किया है। वो जो मुराद शाह है वो ट्रेजरी का बादशाह बना हुआ था 15 सालों में ही। उसने ट्रेजरी में किस तरह टेक्निकल करप्शन की है उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो इन लोगों ने आवाम को क्या समझ लिया है। आवाम को तो मैं तो समझता हूँ कि आवाम तो इन लोगों से फंस गए हैं। आवाम बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। ये जो एक चलन पहले चला था कि भाई पहले सब लोगों का एहतसाब किया जाए, करप्शन का हिसाब दिया जाए, इलेक्शन बाद में कराया जाए, तो ये अच्छी बात थी। तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को बस 8 फरवरी के जैसे कुरान की उतरी हुई कोई आयत है, तो काजी साहब को ये कुरान की आयत अगर इलेक्शन नहीं हुए तो गलत लगेगी। मगर हकीकत ये है कि इन सरब करप्ट लोगों का
अगर एहतसाब कौन करेगा? वही करप्ट लोग जिन्होंने इतने माल बनाए हैं दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, तो उन लोगों से आप क्या अच्छाई की उम्मीद रखते हैं? इन करप्ट लोगों सबका एहतसाब होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, और फिर इंतखाबात होने चाहिए। हम तो आसिम मुनीर साहब से ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है पाकिस्तान को सुधारने का, आपके कुछ इकदाम से पाकिस्तान सुधर गया है, तो आगे भी इन करप्ट लोगों की पकड़ आखिर कौन करेगा? ये खुद ही अपने आप की तो करप्शन की पकड़ नहीं करेंगे। इन लोगों ने तो बंदर बांट कर ली है, इन लोगों ने तो इलाके भी तकसीम कर दिए हैं। अच्छा, सूबे तो तकसीम कर दिए हैं, मगर सूबों में भी अलग अलग अंदर एक रियासतें बना ली हैं, एमएनए की रियासतें हैं, एमपीएस की रियासतें हैं। तो ये कैसा निज़ाम है जो इस मुल्क में जिसने आवाम को गुलाम बनाया हुआ है? इस निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। जब तक इस निज़ाम और इस सिस्टम का खात्मा नहीं होगा, न पाकिस्तान में अच्छाई आएगी, न पाकिस्तानी आवाम जो है वो खुशहाल होंगे। बड़ी मेहरबानी, आपको ये हमारे वीलॉग और बातें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम कड़वी बातें ज़रूर करते हैं, मगर ये सच्ची और हकीकत होती हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाकिस्तान को हिफाजत में रखे। पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद, अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।